شیئر کر دی ہے آخری پیج اس کا جہاں پہ کوشچنز لکھے ہوئے ہیں. جی کرا رہے ہیں. اچھا یہ ہے ریبر اکنامکس. اردو میں بھی جن کے پاس اردو میں بک ہے اس کے بھی سیم کوشچن ہے, انگلش والوں کے پاس بھی سیم ہے. سب سے پہلا کوشچن کریٹیکلی ایگزامن کارڈینل اپروچ آف کنزیومر اکلیبریم یہ کرنا ہے, اور اس میں آپ نے کون سا والا کوشچن کرنا ہے بلا. میں بار بار کتنے افسوس کی بات ہے, ایک ہی چیز میں بار بار بتاتا جاؤں, 1000 دفعہ بتا چکا ہوں. اس میں آپ نے لا آف ایکوی مارجنل والا کرنا ہے, اور یہی آپ کو میں نے ٹیسٹ میں بھی دیا تھا. سمجھے بات. اس کا کریٹیسزم کے ساتھ کرنا ہے. کریٹیکلی ایگزامن کا مطلب ود کریٹیسزم. تو یہ پہلا کوشچن ہو گیا, یہ کرنا ہے آپ نے. اس کے بعد آپ نے یہ کوشچن نمبر 2 یہ بھی کرنا ہے, امپورٹنٹ ہے یہ سارے. وٹ از این انڈیفرنس کرو اور اس کی پراپرٹیز, یہ سارا اس نے ایک ہی کوشچن میں پوچھ لیا ہوا ہے. علیحدہ علیحدہ سے یہ کوشچن 2 بنتے ہیں ہمیشہ, اس میں یہ 2 والا کوشچن ہے. یہ کرنا ہے آپ نے. کنزیومر اکلیبریم ان ویو آف آرڈینل اپروچ یہ کاٹ دیں, یہ نہیں کروایا آپ کو. ان کے یہ کنزیومر اکلیبریم پہ 2 افیکٹ, انکم افیکٹ اور پرائس افیکٹ, یہ کرنا ہے, امپورٹنٹ ہے. کوشچن نمبر 6 نہیں کروایا میں نے, یہ کاٹ دیں. کوشچن نمبر 7 ڈیریویشن آف ڈیمانڈ کرو یہ کرنا ہے. جو مارشلین ڈیمانڈ کرو آپ کو میں نے کروایا تھا وہ, اور آج کلاس کے بعد مجھے یاد کروائیے گا, ایک ویب سائٹ کا لنک بھیجوں گا, اس میں ڈیریویشن آف ڈیمانڈ کرو ود دی ہیلپ آف انڈیفرنس کرو بہت اچھا لکھا ہوا ہے, ادھر سے دیکھ کے نوٹس تیار کر لیں آپ. یہ کوشچن ادھر سے نکل جائے گا. اور لاسٹ والا کوشچن کریٹیکلی ایگزامن سملسن ریویلڈ پریفرنس تھیوری یہ بھی کرنا ہے. تو 8 میں سے 2 کٹوا دیے, 6 کرنے ہیں آپ نے. ابھی میں یہ چیپٹر شروع سے بتا دیتا ہوں کون سا کوشچن کہاں سے کہاں تک کرنا ہے آپ نے. یہ آ گیا جی کنزیومر بیہیویئر چیپٹر نمبر 3. سب سے پہلے کارڈینل میئرمنٹ اپروچ, اس میں آپ یہ ڈائریکٹ آ جائیں. یہ لا آف ڈیمینشنگ یہ آپ کو ویسے میں نے اس کے نوٹس بنوا دیے ہوئے ہیں, ادھر سے دیکھ لیجیے گا, اس میں صرف اتنا سا لکھا ہوا ہے. اس کے بعد یہ ہے کارڈینل اپروچ آف کنزیومر اکلیبریم یا کلاسیکل اپروچ آف کنزیومر اکلیبریم لا آف ایکوی مارجنل یوٹیلیٹی, یہاں سے نشان کریں. یہ سارا کرنا ہے آپ نے. یہ آ گیا اس کا ٹیبل, اور ٹیبل کی ایکسپلینیشن, یہ آ گئی اس کی ڈائیگرام, ڈائیگرام کی ایکسپلینیشن آ گئی. یہاں تک یہ کوشچن آپ کا ہو گیا اینڈ. آگے کنزیومر اکلیبریم والا یہ کاٹ دیں, اور ٹیسٹ میں کئی بچوں نے یہ والا کوشچن لکھ دیا تھا, وہ یہ لکھنا تھا, یہ نہیں لکھنا تھا. اس کے بعد آگے جی آپ نے یہ سارا کاٹتے چلے کاٹتے چلے کاٹتے چلے. آرڈینل اپروچ یہ آگے, یہ نشان کر لیں. یہ انڈیفرنس کرو آپ کا شروع ہو گیا. انڈیفرنس کرو کی یہ ڈیفینیشن, انٹروڈکشن, یہ ٹیبل اس کا یہاں سے یاد کر لیں, یا جو میں نے کروایا ہوا ہے وہ یاد کر لیں. اور اس کی نیچے آ گئی ڈائیگرام. یہ انڈیفرنس کرو اس بک میں ٹھیک نہیں بنا ہوا, آپ نے ٹھیک کر کے بنا لینا. کنویکس ٹو دی اوریجن ہوتا ہے, اس طرح کر کے بنانا. اور ایکس ایکسس کو ٹچ نہیں کروانا آپ نے. انڈیفرنس میپ کاٹ دیں, اس کی ازمپشنز کرنی ہے آپ نے ساتھ. ہمیشہ اس کی بک میں سارا ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے, اور اس کا کریٹیسزم بھی ساتھ ہی دیکھ لینا ہے. انڈیفرنس میپ کے بعد آگے آگے اس کی پراپرٹیز. پراپرٹی سے پہلے بلکہ ایم آر ایس ہے, یہ ایم آر ایس یہاں سے نشان کریں, یہ کرنا ہے آپ نے. اور یہ اس میں وہ سارا ٹیبل انڈیفرنس کرو والا بنانا ہے, اور یہ ڈائیگرام بھی انڈیفرنس کرو والی ہی بنے گی. اور اس میں یہ ڈیمینشنگ مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن یہ بھی ساتھ ہی آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. آگے یہ جو ان کی یہ سلوپیں ہیں, یہ ساری ایکسپلینیشن ہے, یہ کاٹ دیں. اس کوشچن کو بس یہاں تک رکھیں. اس کے بعد آگے ہے جی پراپرٹیز آف انڈیفرنس کرو. یہ کرنا ہے آپ نے, الگ سے کوشچن پوچھ سکتا ہے, یہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں کرنی, جو میں نے کروا دی تھی بس وہی دیکھیں. پہلے اس پہ ٹائم لگا چکے ہم سارا. کنزیومر پرائس لائن یہ کاٹ دیں. اس کے بعد آگے ہے یہ assumption, یہ بھی کاٹ دیں. ڈیمینشنگ مارجنل یہ بھی کاٹ دیں کاٹ دیں کاٹ دیں. میتھمیٹیکل بھی کاٹ دیں. ہاں یہاں سے آ جائیں انکم افیکٹ, یہ کرنا ہے آپ نے. یہ والی بھی 2 ڈائیگرامس کرنی ہے. جب ایکس انفیریئر وائی سپیریئر ہو, یا ایکس سپیریئر وائی انفیریئر ہو, اس وقت کیا شیپس بنے گی. اس کے بعد انکم افیکٹ ان کیس آف انفیریئر, یہ کرنا ہے آپ نے. یہ والی ڈائیگرام کاٹ دیں. پرائس افیکٹ کرنی ہے,
ये भी केस करना है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट काट दें, हिक्सियन अप्रोच काट दें, स्लट्स की अप्रोच भी काट दें, ये भी काट दें रिलेशनशिप, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच ये भी काट दें, मार्शलियन अप्रोच ये आपको मैंने करवा दी थी। ये करनी है आपने डायग्राम हिक्सियन अप्रोच से ऊपर ऊपर, नीचे ये काट दें, और रिवील प्रेफरेंस थ्योरी ये भी बल्कि आप हमेशा की बुक से करें तो ज्यादा बेहतर है। ये बार मैंने कल इसके सारे नोट्स भी बना दिए आपको। रिवील प्रेफरेंस थ्योरी आपने करनी है एंड तक। ये एक ही क्वेश्चन है, रिवील प्रेफरेंस थ्योरी एक्सप्लेन करें या क्रिटिकली एग्जामिन रिवील प्रेफरेंस थ्योरी, बस वही करना है। इसमें सुपीरियोरिटी ये काट दे, ये नहीं करना। क्रिटिसिज्म देख ले, हाँ इसका ले जी, ये चैप्टर फिनिश। ठीक है, इसके एंड पे मैं पहले आपको लेके चलता हूँ इसके क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। ये आ गए जी, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये करवा दिया हुआ है, आपको करना है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या कार्डिनल अप्रोच ये करना है। ये देख लें, यहाँ से भी क्लियर हो जाती है बात। कार्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल लिखना है उसमें। या ये भी हाउ इक्विलिब्रियम अटेन्ड अंडर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ये दो क्वेश्चन करने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 3 डिफरेंस कर्व वाला है, ये भी करना है। इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं करना, सिर्फ इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं वो आपने एक्सप्लेन करना है। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, ऊपर वाला 3 स्टैटिक था। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये बेसिकली इंडिफरेंस कर्व की ही एक्सटेंशन है, उसी का ही पार्ट है, तो इसलिए मैंने एक को 3 स्टैटिक कह दिया, एक को 3 कह दिया। तो ये आपने काम करना है एमआरएस वाला। क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व ये करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में इनकम अफेक्ट और प्राइस अफेक्ट करना है। दूसरी बुक में सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट पता नहीं था, ये इतनी डिटेल में नहीं था, वो आप उधर से भी काट दें, इधर से भी काट दें। एक्सप्लेन रिलेशनशिप वाला काम काट दें। ड्राइव कंज्यूमर डिमांड कर्व या पीपीसी फ्रॉम इंडिफरेंस कर्व ये करना है। डिफाइन इंडिफरेंस कर्व, ड्राइव डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व ये भी वही चीज करना है। एस्टेब्लिश रिलेशनशिप काट दें। मेक अ कंपैरिजन बिटवीन काट दें। कंपैरिजन बिटवीन कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच इनके ये वैसे आपने कर लिया होगा। हाँ, तो ये अगर आपको क्वेश्चन पूछ भी ले कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच में कंपैरिजन करें और 20 नंबर का सवाल पूछ ले, तो इसमें आपने 10 नंबर का लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन लिख देना और 10 नंबर का इंडिफरेंस कर लिख देना। तो दोनों को एक्सप्लेन कर देंगे कि दोनों का कंपैरिजन हो गया। एंड पे आपने कंक्लूजन में ये बता देना कि इंडिफरेंस कर्व वाले कहते हैं कि यूटिलिटी को गिना नहीं जा सकता, आप रैंक कर सकते हैं, और वो कार्डिनल वाले कहते हैं यूटिलिटी को आप काउंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सिमुलेशन थ्योरी ऑफ रिव्यूइंग प्रेफरेंस ये करना आपने विद क्रिटिसिज्म। और लास्ट वाला कंज्यूमर डिमांड पर जो ड्राइव करेंगे तो आएगा। तो ये आपके हमेशा ऐसे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब शुरू में आपको मैं लेके चलता हूँ चैप्टर पे और निशान भी रखवा देता हूँ। ये आ जाए, इस पहले पेज में से आपने कुछ भी नहीं करना, दूसरे में भी कुछ नहीं करना। यहाँ पे आ जाना आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन, यहाँ से आपने ये स्टार्ट कर देना। वैसे आपको ये करवा दिया होगा, वही कर लें तो वो भी काफी है। ये इसकी assumption भी बीच में आ गई, ये टेबल आ गया। और ये यू का मतलब टोटल यूटिलिटी है, ये वाला काट दें, ये नहीं करना, ये वाला टेबल करना है। उसके बाद ये नीचे आ गई डायग्राम, मैंने डायग्राम दोनों एक ही पैनल में बनवा दी थी। ये टोटल यूटिलिटी, ये मार्जिनल यूटिलिटी। तो मैंने कहा था जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाए, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। इधर इन्होंने अलग अलग पैनल में बना के समझा दिया हुआ है, तो एक ही बात है। यहाँ पे ये एम पी जीरो हो रहा है, एम यू उसके सामने पी यू मैक्सिमम हो रहा है। तो ये ग्राफ आपने बनाना है, इसकी अजम्पशन ये आगे इसमें देखनी, यहाँ तक ये काम। इसके बाद आगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन स्टार्ट होता है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन ये सारा करना है आपने। और ये इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई, ये इसकी डायग्राम आ गई। यही वाली डायग्राम आपको मैंने भी बनवाई थी, उसमें दूसरी बुक में और तरह से। अच्छा जी, आगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये वाला काट दें, ये नहीं करना। लिमिटेशंस इक्वी मार्जिन की ये निशान कर लें, करनी है। आगे है जी डेरिवेशन ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये काट दें, ये भी काट दें सारा। ऑर्डिनल अप्रोच टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम
ये भी काट दें और ये assumptions भी काट दें। ऊपर डिफरेंस कर्व में देख लीजिएगा assumptions लिखी है, नहीं तो ये यहाँ से लिखिए डिफरेंस कर्व की assumption है। डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व ये आ गया जी, ये करना है आपने, और इसी में assumptions वो ऊपर वाली आपने लिख देनी। आगे ये टेबल जो मैंने बनाया वो कर लें, नहीं तो ये वाला अच्छा लग रहा है ये कर लें। ये आपका यहाँ तक इंडिफरेंस कर्व की डेरिवेशन कंप्लीट। ये इंडिफरेंस मैप है, ये नहीं करना। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इंपॉर्टेंट है, ये भी करना है आपने। और ये यहाँ से शुरू होके आपने यहाँ तक करना है, प्रिंसिपल ऑफ DMRS तक। बजट लाइन काट दें, ये भी सारा काट दें, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम काट दें। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस कर्व करनी है, ये निशान करना है, ये सारी प्रॉपर्टी भी चलती आ रही है। कंपैरेटिव स्टैटिक ये काट दें, ये बल्कि यहाँ से इनकम इफेक्ट ये करना है आप ये। और ये इन्होंने जीरो से सीधी लाइन आपने लेके आनी है, ये जैसे ये ड्रामा नहीं करना इसका। नॉर्मल गुड्स केस में ये इनकम कंजम्पशन कर्व बन गई आपकी, और जिस वक्त आपका वाई सुपीरियर हो तो ये इनकम कंजम्पशन कर्व इस तरह की बनेगी, एक्स सुपीरियर हो इनकम कंजम्पशन कर्व इस तरह की बनेगी, न्यूट्रल हो। ये भी आपने देख लेना इस बुक से, अब्दुल गनी मैंने लिखा हुआ। एक्स आपका न्यूट्रल है, तो इनकम ज्यादा होने से एक्स इतना ही रहने देंगे आप, वाई ज्यादा कर देंगे। ये इनकम कंजम्पशन कर्व बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन। ये वाली डायग्राम काट दें 24-25। प्राइस अफेक्ट करना है तो निशान करना, सब्सटीट्यूशन अफेक्ट नहीं करना, काट दें। रिलेशनशिप काट दें, नहीं करना, ये भी सारा काट दें। हाँ ये वाला आपने करना था, कंज्यूमर डिमांड कर्व फ्रॉम प्राइस कन्वर्शन का, ये यहाँ से करना आपने। और आगे इसकी डायग्राम ये होगी यहाँ तक। आगे मार्केट डिमांड कर्व काट दें, ये नहीं करना। आगे ये है डिमांड कर्व इन केस ऑफ गिवन गुड, ये भी देख लें कर लें आप। और इसमें आपने ये याद रखना है कि गिवन गुड में लॉ ऑफ डिमांड वो अप्लाई नहीं होता, इसमें अपोजिट कहानी है। एक्स जून जून सस्ता होगा उसकी डिमांड कम होती जाएगी, तो एक्स सस्ता हुआ उसकी डिमांड कम, तो इसका मतलब है कि डिमांड कर्व इसकी पॉजिटिव बढ़ेगी। वो क्या, जितने भी केसेस है उसमें डिमांड कर्व नेगेटिव बढ़ती है, ये होती है। प्राइस कम करें डिमांड ज्यादा हो जाती है, यहाँ पे उलट हिसाब है, प्राइस कम करें डिमांड भी कम, प्राइस ज्यादा करें डिमांड भी ज्यादा। तो ये इसका पॉजिटिव रिलेशन बात है। ये गिवन गुड का यहाँ तक देख लीजिएगा। कंपैरिजन ये काट दें, क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिफरेंस कर्व ये एक नजर देख लीजिएगा, सिमिलैरिटीज काट दें। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी ये सारा यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इस बुक से करना चाहिए सभी को। और ये assumptions, इंट्रोडक्शन, ये इसके फीचर्स आगे, और ये पहली डायग्राम कल मैंने इसी तरह तरतीब से समझा दिया था। ये दूसरी डायग्राम और ये तीसरी डायग्राम, उसके बाद ये कंबाइन करके ये चौथी डायग्राम है। यहाँ तक आपने करना, और नीचे ये डेरिवेशन ये काट दें, और ये आपका चैप्टर यहाँ पे आके हो गया फिनिश। आगे ये डेरिवेशन ऑफ ये भी काट दें, क्रिटिसिज्म ऑफ सॉल्यूशन एंड पे ये आपने देख लेना यहाँ पर। ये है जी चैप्टर कंप्लीट। दोनों बुक वालों को उम्मीद करता हूँ समझ लगेगा।